Hello everyone, welcome to the WikiTrade. So today we'll do the daily market analysis for 10th February 2025. हिंदी दर्शकों के लिए आप सभी को विकी ट्रेड पर स्वागत है और आप डिस्क्रिप्शन में देखिए टाइम स्टैम्प दिया गया है और उसी टाइम स्टैम्प में आप आगे बढ़ते रहिए और आगे से हम फिर से शुरू करेंगे डेली मार्केट एनालिसिस का वीडियो हिंदी में. सो नाउ इट इज टाइम फॉर द इंग्लिश सेशन. So as usual, we are going to our Nifty 50 chart in see this 15-minute candlestick. Okay, so in 15-minute candlestick, what we have analyzed before, that is on Friday, that Nifty was below. If we do the selling in case of Nifty 50, as per our analysis, below 23,380. So it went to the lowest, that is 23,320. But still, see, this is our support zone. Okay, so Nifty goes here up to 23,320. But the support zone is not broken yet. Okay, so see what happened today. It is our the first candle. Again, this is the first red candle, and it opens flat. Okay, and Nifty goes something down, some percentage down here. Second, minus 0.76%. Nifty goes down, but again from the support zone, it tried to go in the upward direction and closes. Okay, closes here in the 23,376. So now we will analyze what will happen in our next session. So as usual, uh, this is our no trading zone. Okay, so see this. This is a resistance zone. Above to this, that is 23,623. Okay, 23,623. Above to this, if market sustains here, then we can go for call side. And if this is an important support zone, if it breaks this support zone here in the below, that is 23,273, then we can go for sell. It is kind of easy to tell. Okay, so see what happened. This was a resistance zone created on uh, 4th February. Okay, so market respected this for 2-3 days. Then, in a quite descending manner, it goes down. But see, this is the support zone. Okay, so if market breaks this inclined line, I've drawn that. Okay, so if market breaks this, we can expect a higher from this, but this one is the resistance zone. So let the market break this resistance zone, then we can take buy here. Okay, and up to this resistance level, and above to this resistance zone, we can again take a trade in buying side. Okay, so this one is for Nifty 50. See, from around 4th February to 10th February today, see market is now in a box. Okay, so if you break down here from the support zone, then we can see a tremendous fall in Nifty 50. But in case of buying high, okay, if we expect market to go very high, then it has to break this resistance. Then we'll go for the day chart. In day chart, what happened? Continuously for 4 trading sessions, for 4 trading days, market is going down, and these are the healthy red candle. It's showing a bearish momentum, but this is our important support zone 23,280. So if market once break down this 23,280, then it will then we can see a drastic fall around here. See, this one is a touching point again. This one for two days, market just um, touched here. Then again, this act as a resistance point for the uh, days where market traded below.
Okay, see, this is a green candle we have seen before the budget session, and this was created just on this hour support zone. So it is a very good support zone. So once market breaks down it in the downside 23,280, we can see a drastic fall here. But from here, if market controls itself, if market recovers itself, we can see a buy. But according to our analysis, it seems quite hard for market to go in the upper direction. Okay, go in the upper direction as there are continuously bearish momentum. So I'm expecting that market may breaks this important support zone. So now we are going to the Nifty Bank 15-minute chart. See in Nifty Bank 15-minute chart, what happened? See first what we analyzed yesterday means on Saturday, okay, on Friday. That is the before session, last session. Uh, what we have analyzed that Nifty Bank start from here, okay. This is the 9:15 candle. So if Nifty Bank support zone is 50,010, so sell below 49,880. So we can see here its support zone was 50,010. This one, okay, 50,010, and it breaks the support zone in the very second candle. It was a good healthy red candle. That means it itself shows that market will go down. So now we have analyzed it. We have to sell below 49,880. Okay, this one is the 49,880. This point. Okay, this is the 49,880 level, and below to this point again market see goes down. If went down, if we have taken the trade in selling side, uh, we must have gained a lot, okay, until the support zone. Okay, if yeah, we could see that it didn't touch our support zone. Okay, just return right from here, just a difference of momentum, but that happened in market quite some time. Okay, then it again goes in upward direction, but see now this is the resistance zone, and market stops here. Okay, goes sideways from here. Last 45 minutes market just traded here, uh, uh, below to the resistance zone. So for our next session, if market breaks this resistance, that is uh, upward to the 50,000 90. So if market sustains, Nifty Bank sustains above 50,090, then we can go for a for our buying side, and this will be our resistance 50,000 480. Okay, almost 400 point 400 point buying side. In case of buying side we can see, and if we have to sell, so we have to if market goes down we have to sell below 49,620, and this one will cover this much point, that is up to a resistance, up to a target 49,420 again. And below to this support zone, this is the important support zone 49,300, we can see a drastic fall. So now going to the Nifty Bank daily chart. See now Nifty Bank. In case of Nifty Bank, it is now range bound in a box. Okay, for continuously 4 trading sessions, it is now imprisoned in a box. So in either in upward or in downward, wherever it breaks healthy, in case of healthy manner, or it sustains, then we should go in that side. If it breaks this resistance 50,450 and sustains there, okay, any bullish candle, any bullish movement, any healthy bullish candle, if we see in above this resistance point, that is 50,000 460, then we should go for go in buying direction in the upward movement. And if it goes down below 49,600, then we should go for selling side. So this much was for our daily मार्केट एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड निफ्टी बैंक. सो अभी हम डेली मार्केट एनालिसिस करेंगे हिंदी दर्शकों के लिए.
हिंदी दर्शकों के लिए आप देखिए, पहले तो हम ये एनालाइज करेंगे कि हम जो पिछले बार दिए थे फ्राइडे को मार्केट एनालिसिस, उसके हिसाब से हमारा मार्केट आज गया कि नहीं, ये फर्स्ट वेरीफाई करेंगे। सो निफ्टी के केस में हमने दिया था कि निफ्टी का सपोर्ट जोन है 23,457. So this was our first candle. Uh, okay, this one is the very good red candle. This is the sorry guys, ये हमारा पहला रेड कैंडल है, जो एक बहुत ही अच्छा रेड कैंडल था। सो हमारा सपोर्ट था 23,447. सो दिस वाज ओके, ये था हमारा सपोर्ट जोन। हमने बोला था कि अगर इसको कट कर लिया, अगर इसको ब्रेक डाउन कर लिया तो मार्केट में हमको एक फॉल दिख सकता है, तो पर हमको 23,380 के नीचे से सेल करना है। यहीं पर होगा तो ये हमारा सपोर्ट टूट गया। अगर ये देखिए, सो 23,380 ये वाला जो है 380 के नीचे से हमको सेलिंग करना है। तो अगर हमने यहाँ से सेलिंग की थी, किया होगा, तो यहीं तक हमको पॉइंट्स को हमको प्रॉफिट हो रहा होगा। तो ये एक करीबन 380 से 320 60 पॉइंट का लगभग हमको प्रॉफिट हुआ है। और इसके बाद मार्केट यहीं से ऊपर जाने की कोशिश की है, पर ये जो साइडवेज गया था ना, इसी में मार्केट फंस गया। सो ये हम देख सकते हैं कि अगर ये हम एक इंक्लाइंड लाइन यहाँ से बनाएंगे, तो मार्केट एक लो की डायरेक्शन में जा रहा था करीबन 3 दिन से, 6, 7, 10। ओके, 3 दिन से मार्केट एक लो के तरह बिहेवियर दिखा रहा था। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलती है, तो हमारा ये वाला जो होगा, ये होगा हमारा पहला टारगेट 23,528 का। और ये जो हमारा रेजिस्टेंस रेंज है, रेजिस्टेंस जोन 23,625 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर लिया, तो ही हमको बाइंग करना चाहिए। मैं इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि आप लोग ये वाला जो 23,625 पर लेकर आज का जो क्लोजिंग है, ये हमको नो ट्रेडिंग, ये वाला सॉरी 23,300 ये वाला को हमको नो ट्रेडिंग जोन में रखना चाहिए। सी ओके, दिस मच शुड बी इन आवर नो ट्रेडिंग जोन। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर लिया तो हमको बाई साइड करना चाहिए। अगर मार्केट इसका नीचे आ गया तो हमको सेलिंग साइड पर रहना चाहिए। तो नोट कर लीजिए, ये हमारा होगा 23,625 के ऊपर बाइंग और 23,270 के नीचे सेलिंग। ये देखिए, ये करीबन 4 फरवरी से लेकर आज तक मार्केट एक रेंज बाउंड में है। ओके, मार्केट एक बॉक्स में है। तो ये जो हमारा पहला रेजिस्टेंस, ये जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस जो पहला वाला है, और ये हमारा सपोर्ट जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल गई तो बहुत बड़ा बाइंग हमको दिखना पड़ेगा। और मार्केट इसके नीचे अगर आ गई, सपोर्ट ये वाला सपोर्ट जोन के नीचे अगर आ गई, तो हमको भी बड़ा एक फॉल दिखना पड़ेगा मार्केट के अंदर। सो अभी हम जाएंगे डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट में क्या हो रहा है, लगातार 4 दिन के लिए हम यहाँ दिख रहे हैं कि मार्केट बेयरिश मोमेंटम दिखा रहा है, और ये हमारा सपोर्ट जोन है। 4 दिन से मार्केट बेयरिश मोमेंटम में है, पर हमारा सपोर्ट जोन कायम है, वो टूटी नहीं है अभी तक, जो है 23,270 पर। मार्केट का ये हालत देखकर हमको लग रहा है, हमारा एनालिसिस ये बोल रहा है कि अगर ये कल भी मार्केट को बेयरिश जाना है, अगर गया और ये सपोर्ट जोन टूटा 23,280, सॉरी नॉट 270, इट इज 280, तो मार्केट में हम जरूर सेल के साइड जाएंगे और एक बड़ा सा फल हमको दिखेगा। और मार्केट यहाँ से अगर पर ये एक सपोर्ट जोन है ना, इसको ब्रेक करना इतना आसान भी नहीं है। मार्केट का मोमेंटम देखकर तो हमको लग रहा है कि हाँ, मार्केट में और भी फॉल बाकी है, पर ये एक बड़ा सा सपोर्ट जोन है, इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। हो सकता है कि मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाए, यहीं से रिवर्स होकर ऊपर चला जाए। अगर ऊपर चला गया तो
ये जो रेजिस्टेंस है हमको यहीं पे रुकना चाहिए। 24,050 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन किया तो हमको 24,200, ये जो 150 पॉइंट का जो प्रॉफिट है ये बुक कर लेना चाहिए। और फिर हमको दोबारा 24,200 के ऊपर अगर मार्केट फिर से सस्टेन किया तो फिर से हमको घुसना चाहिए, और इसका टारगेट होगा 24,700। ओके, पर इस सपोर्ट जोन के नीचे 23,270 के नीचे हमको सेल करना चाहिए। तो इसके बाद में आएंगे निफ्टी बैंक 15 मिनट चार्ट। निफ्टी बैंक के 15 मिनट चार्ट में हम देखेंगे कि हम पिछला सेशन में क्या एनालाइज किया था कि ये हमारा है पहला कैंडल। ओके, सो पहला कैंडल हमने ये बोला था कि सपोर्ट जोन होगा 50,010। सो कहाँ है ये सपोर्ट जोन 50,010? यही है सपोर्ट। ओके, 50,010 ये हमारा सपोर्ट जोन होगा। देखिए सिर्फ दूसरी कैंडल में ही ये जो सपोर्ट जोन था ये हमारा ब्रेक कर लिया। तो हमने बोला था कि सेल बिलो 49,880, 49,880 जो ये वाला जोन है, इसके इसके नीचे से ही हमको सेल करना चाहिए। और इसके नीचे से ये देखिए कितना बड़ा रेड कैंडल है। तो इसी से ही हम अगर सेल किया होगा तो ये जो एक मोमेंटम है, ओके, हमारा ये सपोर्ट जोन को तो ये टच नहीं किया, वो थोड़ा ऊपर ये नीचे ये ऊपर की साइड घूम लिया, पर फिर भी हमको कुछ प्रॉफिट हुआ है। और ये भी अब कैंडल स्टिक के जो है ना, यहीं से आप देख लीजिए कि ये एक बड़ा सा कैंडल, ये एक छोटा सा ग्रीन कैंडल, देन एक बड़ा सा रेड कैंडल। अगर हम इसको बेरिस हरामी की तरफ कैंडल स्टिक के जैसा समझते हैं तो ये एक बेरिस हरामी है। तो हमको इसी लेवल पर ही बाई करना चाहिए था सेल की तरफ, मीन्स पुट बाय और कॉल सेल, वो जो भी आपको करना है आप कर सकते थे। तो यहीं से 49,880 के 880 से 49,700 ये लगभग एक 170 का हमको प्रॉफिट दिया होता। और फिर से यही आसपास सपोर्ट जोन था, तो मार्केट यहीं से घूम लिया साइडवेज होकर, वो इसी रेजिस्टेंस पे जाकर वो ऐसे घूमते हुए यहाँ से क्लोज हो गया। तो कल के लिए हम ये एनालाइज करेंगे कि हमने पहले से ही सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए हैं, तो अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, निफ्टी बैंक सस्टेन करता है, ताकि 50,090 ओके मान लीजिए इसको 50,100, 50,100 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हम यही टारगेट डायरेक्ट एक बड़ा टारगेट 50,480 के आसपास हमको टारगेट रखना चाहिए। लगभग 450 के ऊपर का पॉइंट का टारगेट है। नहीं तो मार्केट अगर इसी सपोर्ट जोन से नीचे निकलता है, 49,620 के नीचे मार्केट आ जाता है, तो हमको यहीं पर टारगेट रखना चाहिए 49,425। और फिर 49,300 के नीचे अगर मार्केट फिसलता है तो हमको एक बड़ा सा फल दिखना पड़ेगा यहाँ से। तो इसके बाद जाते हैं हम निफ्टी बैंक के डे चार्ट की तरफ। निफ्टी बैंक के डे चार्ट में क्या होता है कि मार्केट 4 दिन से एक रेंज बाउंड में रह गया है, एक बक्स में रह गया है। ओके, ये हमारा एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल था और इसी के आसपास एक बक्स में रह गया है। और मार्केट अगर इसी सपोर्ट जोन का, ये जो 49,625 इसके नीचे फिसलता है तो हम पक्का सेलिंग साइड पर जाएंगे। नहीं तो अगर ये 50,500 के ऊपर और 50,450 के ऊपर ये मार्केट सस्टेन करता है, एक हेल्दी कैंडल हमको इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर फॉर्मेशन होना चाहिए, तब भी जाकर हम बाइंग की तरफ जाएंगे। और हमारा जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो होगा 51,560। ये ओके, ये हम पोजिशनल ट्रेडिंग के बात कर रहे थे। अगर आपको इंट्राडे करना है या स्विंग ट्रेडिंग करना है, बेचना है फिर खरीदना है, तो पहला टारगेट ये होगा हमारा 50,980, इसके आसपास हमारा
जो पहला टारगेट होगा, ये वाला रेड कैंडल जो दिख रहे हैं आप, इसका हाईएस्ट पॉइंट, और सेकंड टारगेट हो इसका हाईएस्ट पॉइंट। ऐसे ही हम निकलते रहेंगे मार्केट पर इन बाइंग साइड। और ये अगर इसके, ये जो सपोर्ट जोन है इसके नीचे आ गया, तो 49,620 के नीचे आ गया, तो हम सेलिंग के साइड पे जाएंगे, और ये हमारा पहला टारगेट होगा 48,730। सो आज के लिए डेली मार्केट एनालिसिस इतना ही। बाय बाय।